أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ابھی ہم بہت دن سے کیرلا کی تاریخ یعنی کیرلا میں اسلام کیسے پھیلا اور کون کون اس میں کیا کیا کیے اس کے بارے میں ابھی ہم بتا رہے تھے. تو آج الحمدللہ ہم بتائیں گے مخدوم اول. ہمارے چیپٹر دیکھیے، سبق 12 مخدوم اول، یعنی کیرلا کے بارے میں ہم بتائیں. کیرلا میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دین اسلام کی رسالت آئی ہے، اور اسی زمانے سے جو علماء لوگ باہر سے آئے تھے اور جو سادات لوگ آئے تھے، جو لوگ یہاں کے جو مسلمانوں ہیں ان کی قیادت، ان کے لیڈر تھے. تو ایسے یعنی علماء لوگ بہت پہلے سے ہی کیرلا میں آئے تھے، اور یہ علماء لوگ آنے بعد وہ لوگ دوسروں کو پڑھائے تھے. یعنی بڑے بڑے علماء لوگ اور بھی آئے تھے. ایسے کیرلا میں یہ دین اسلام پھیلنے میں اور دین اسلام کی اشاعت میں، دین اسلام کی تعلیم اور تعلیم میں اور دین کی جو معلومات ہے وہ پھیلنے میں علماء لوگ بہت کچھ کیے. اور اس میں سے ایک اہم نام ہے مخدومی قبیلے کا. مخدومی آپ لوگ سنے ہوں گے، یا مخدوم اول اور مخدوم ثانی، نہیں تو زین الدین مخدوم الکبیر، زین الدین مخدوم الصغیر، ایسے سب آپ لوگ سنے ہوں گے. تو آج ہم بتائیں گے مخدوم اول کے بارے میں، اور ان کے بارے میں بتانے کے ساتھ ہی ساتھ ہم بتائیں گے پونانی کے بارے میں. تو یہ پونانی کدھر ہے؟ پونانی ایک ساحلی علاقہ ہے جو آج کے مالپورم ضلع میں واقع ہے. یہ پونانی کی کیا اہمیت ہے؟ میں بتایا تھا اسے پہلے، ایسا لگتا ہے ہم بتائے تھے کہ پونانی بولے تو کیرلا مسلمانوں کا مکہ ہے، ایسے ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک مرکز تھا جہاں پہ علماء لوگ بہت تھے. یہ مخدومی قبیلے کے علماء لوگ، وہ لوگ وہاں پہ درس چلائے تھے، لوگوں کو پڑھائے تھے، لوگوں کو علم دے رہے تھے. اور پونانی ایک مرکز بن گیا مسلمانوں کا. پونانی میں جو مسجد ہے وہ بہت مشہور ہے، بہت پرانے زمانے سے ہی وہاں پہ درس چل رہا ہے، دینی تعلیم چل رہا ہے، اور یہ سب چل رہا ہے، اور اس کی بقیت یعنی اس کی جو آثار سب آج بھی وہیں پہ موجود ہے. تو پونانی کی جو مسجد ہے وہ بھی مشہور ہے، پونانی کے جو لوگ ہیں وہ بھی مشہور ہے، اور پونانی جگہ کا نام ہی مشہور ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کی ایک مرکز تھی. اس لیے دیکھیے سبق 12 مخدوم اول.
केरला में पाक दीन कायम करने और मजहबी उलूम की इशाअत के लिए जिन अनगिनत बड़े उलमा ने निहायत कोशिश की थी, उनमें मखदूम ख़ानदान को अवलियत हासिल है। इस ख़ानदान के बानी शेख अली बिन अहमद माबरी है। उन्होंने माबर ख़ानदान के साथ कोचिन में क़ियाम किया। वहाँ 873 हिजरी में यानी 1468 ईस्वी में मखदूम अव्वल की विलादत हुई। इब्तिदाई तालीम कोचिन में हुई थी। तो अभी हम बोल रहे हैं केरला में पाक दीन कायम करने और मजहबी उलूम की इशाअत के लिए जिन अनगिनत बड़े उलमा ने निहायत कोशिश की है, यानी बहुत ज़्यादा उलमा के नाम आप लोग सुने होंगे। केरला में हम पहले से बताए, पहले वाली चैप्टर में हम बताए थे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही यहाँ पे दीन इस्लाम की वो इल्म, दीन इस्लाम की वो रिसालत, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँच गया। तो दीन इस्लाम के जो मालूमात है वो मालूमात लोग हासिल कर रहे थे। लोग ये मालूमात हासिल करने के लिए उलमा के पास जा रहे थे, और जो लोग पढ़ के, जो लोग इसके बारे में अच्छा से समझ के बड़े बड़े उलमा लोग आ रहे थे। तो ये सब इसकी सब वजह से दीन इस्लाम की वो पैगाम और दीन इस्लाम की जो उलूम है, जो मालूमात है, वो सब यहीं पर बराबर रहता था। और तो बहुत उलमा लोग इसके लिए निहायत कोशिश की है। उनमें मखदूम ख़ानदान को अवलियत हासिल है। इनमें से जितना उलमा लोग के नाम हम बोलते वक्त, बहुत ज़्यादा उलमा लोग हैं, हम किसी को दूसरा नहीं समझते, लेकिन इनमें मखदूम ख़ानदान को अवलियत हासिल है। उनको हम अव्वल मानते हैं। हम मानते हैं कि ये लोग बहुत कुछ किए हैं, क्योंकि वो लोग जो किए थे, यानी पन्नानी को मरकज़ बना के वो लोग जो इल्म की इशाअत के लिए जो किए थे, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ थी। यानी बाकी लोगों को सब, बाकी जगह के लोगों को सब, वो लोग एक मिसाल ही बन गए थे। इस ख़ानदान के बानी शेख अली बिन अहमद माबरी है। उन्होंने माबर ख़ानदान के साथ कोचिन में क़ियाम किया। तो ये कोचिन की तरह है, केरला के थोड़ा और भी नीचे है। ये मलप्पुरम जहाँ रहते उसे भी नीचे है, नीचे बोले तो साउथ में है कोचिन। वहाँ 873 में हिजरी में यानी 1468 में मखदूम अव्वल की विलादत हुई। मखदूम अव्वल कहाँ पैदा हो गए थे? कोचिन में पैदा हो गए थे, और उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कोचिन में ही हुई थी। इब्तिदाई तालीम बोले तो सादा जो छोटे छोटे क्लासों में जो पढ़ते, इब्तिदाई तालीम सब कोचिन में ही हुई थी। और देखिए फिर वो पन्नानी आ गए, यानी मखदूम अव्वल, फिर वो पन्नानी आ गए और अपने प्यारे चचा काजी ज़ैनुद्दीन इब्राहिम बिन अहमद माबरी के साथ रहने लगे। फिर वो पन्नानी आ गए और अपने प्यारे चचा काजी ज़ैनुद्दीन इब्राहिम बिन अहमद माबरी के साथ रहने लगे, यानी वो अभी पन्नानी पहुंच गए। मखदूम अव्वल के बारे में अभी हम बोल रहे हैं। कोची में उनकी विलादत हुई, वो उन्होंने कोची में पैदा हो गए थे, और फिर वो पन्नानी आ गए। कोची में से ही इब्तिदाई तालीम सब हासिल करने, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए पन्नानी आ गए, और उनके चचा काजी ज़ैनुद्दीन इब्राहिम बिन अहमद माबरी के साथ रहने लगे। बड़े उलमा से कई तरह की तालीमात हासिल की, और ऐसा दर्जा हासिल किया जो 9वीं सदी हिजरी में हिंदुस्तानी उलमा से सबसे अव्वल रहे। बड़े उलमा से कई
कई तरह की तालीमात हासिल की, यानी वो तालीमात हासिल करने में, मालूमात हासिल करने में, दीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में, पढ़ने में बहुत शौक़ दिखाए थे। और उन्होंने पढ़े, बहुत उलमा लोग के पास गए, बहुत उलमा लोग से मिले और उनमें उनके पास और उनसे जो जो मालूमात हासिल कर सकते हैं वो सब हासिल किए। जहाँ तक कि देखिए, और ऐसा दर्जा हासिल किया जो 9वीं सदी हिजरी में हिंदुस्तानी उलमा में सबसे अव्वल रहे। 9वीं सदी हिजरी में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आलिम बन गए। केरला से एक आलिम जो कोच्चि में पैदा हो गया था, वो ऐसी बड़ी दर्जा में पहुंच गए। तो इतना बड़ा आलिम बन गए थे, इतने बड़े आलिम बन गए थे जो हिंदुस्तान में मशहूर थे उस ज़माने में। हिंदुस्तान में जितने उलमा लोग थे उनमें से सबसे अव्वल आ गए थे। तो मखदूम अव्वल के बारे में आज हम बहुत कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं बताए, बस थोड़ा थोड़ा बताए हैं। इंशाअल्लाह आगे हम बताएंगे, आगे बोलते रहेंगे इनके बारे में, ज़्यादा चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी इतना ही बोल के हम ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।